ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امیر حسن نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ہے وہ جانے مسیحا آپ بولتے رہیے، ورنہ میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ جو بولتے نہیں ہیں صرف دنیا کے چکر میں رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن گھاٹے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے نا، وہ دنیا بنانے کے چکر میں انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں، نہ دین کی محفل میں گئے، نہ شریعت سیکھا، نہ مذہب سیکھا، لیکن دنیا کا ریتی رواج ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب لاؤ جائیداد کا بٹوارا کیا جائے، ہے نا دنیا کا ریتی رواج۔ ایک صاحب تھے دنیا بنانے میں بڑے مشغول تھے، بڑے مصروف تھے، لیکن انتقال ہوا۔ وہ دور تھا پنچ پنچیت کا۔ پنچ صاحب بیٹھے، 4 بیٹے کھڑے تھے، کہا اب بٹوارا کر دیا جائے باپ کے جائیداد کا۔ پنچ صاحب نے کہا کہ تمہارے باپ نے 4 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، وہ کون لے گا؟ ایک کلو تھے کھڑے ہوئے، کہا میں لوں گا۔ کہا تمہارے باپ نے 5 بیگھہ زمین چھوڑا ہے، وہ کون لے گا؟ کلو کھڑے ہوئے، کہا میں لوں گا۔ کہا تمہارے باپ نے 5 بھینس چھوڑا ہے، وہ کون لے گا؟ کلو کھڑے ہوئے، کہا میں لوں گا۔ کہا تمہارے باپ نے 4 لاکھ روپیہ قرض چھوڑا ہے، وہ کون چکائے گا؟ سب کے سب بیٹھے رہے۔ اب پھر پنچ صاحب نے کہا تمہارے باپ نے 4 لاکھ قرض چھوڑا ہے، کون چکائے گا؟ پھر بیٹھے رہے۔ پنچ صاحب جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو وہ کلو اٹھا اور کہا سب میں ہی لے لوں گا، تو یہ کیا لیں گے؟ کیا کہا؟ سب میں ہی لے لوں گا، تو یہ کیا لیں گے؟ یہ بھی بیٹا ہونے کا فرض نبھائے اور باپ کا قرض یہ اتارے۔ گویا جتنا نفع مال تھا سب کلو ہجم کر گئے، اور جتنا گھاٹا تھا وہ فرض نبھائے بیٹے کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسا فرض نبھانا پڑے، آپ خود تیاری کر کے جاؤ۔ بولو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی آپ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر آپ کو سلام پڑھا دیا جائے گا۔ آپ لوگ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ اے کیول پور کے سنی مسلمان بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے ایمان والو، جو میرا محبوب تھے، یہ رب فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے، اے ایمان والو جو میرا محبوب تھے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے باز آ جاؤ۔ وہ کیول پور کے سنی مسلمان بھائیوں، آؤ نبی آخر الزماں کی ہسٹری پڑھو، پیغمبر اسلام کی زندگی پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول معراج گئے ہیں تو معراج میں نماز جیسا انمول تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول معراج تشریف لے کر گئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بات کرتے کرتے اگر کسی چیز کا طلب کیا ہے میرے مصطفیٰ نے، تو امت کی بخشش کا ذکر کیا ہے۔ آؤ نبی کی زندگی پڑھو۔ جب راتوں رات زمانہ سو جاتا تھا، پیغمبر اسلام سجدے میں سر رکھے اگر رب سے کسی چیز کا طلب کرتے تھے تو امت کی بخشش کے لیے عرض کیا کرتے تھے۔ وہ کیول پور کے مسلمانوں، جب زمانہ سو جاتا تھا تو اللہ کے رسول نے اگر کسی کے لیے دعا مانگی ہے تو وہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا مانگا ہے۔ لیکن او مسلمانوں، جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہو، جس نبی نے ہمارے لیے معراج میں جا کے جماعت جیسے انمول تحفے کو لایا ہو، جو نبی ہمارے لیے راتوں رات سجدے کیے ہو، جو نبی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب باتیں ہو رہی ہو تو ہر بار رب کی بارگاہ میں امت کی بخشش کا طلب کیا ہو، اسی نبی کا امت کا حال کیا ہے، اسی نبی کے چاہنے والوں کا عالم کیا ہے، اسی نبی کے ماننے والوں کا عالم کیا ہے۔ آج اگر جائزہ لیا جائے تو کل چل وہ ہمارے نوجوان میدان میں اترتے تھے تو میدان ان کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج دیکھو اگر چوراہے اور گلی کوچوں کا نظارہ کیا جائے تو ہماری قوم کا بچہ کہیں شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں بیر خانوں پر بیٹھ کر بیر کی بوتلیں توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں ناچ گانوں کی محفلوں کو آباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیول پور کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला ने तुम्हें अपने महबूब के उम्मती में पैदा फरमाया है। जिस नबी ने तुम्हें क्या नहीं दिया है, जब तुम्हें मेराज करनी हो तो मस्जिद में चले आओ, नमाज पढ़ लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, ऐ लोगों तुम्हारी मेराज, तुम्हारी नमाज तुम लोगों के लिए मेराज है। लेकिन आज नमाजों से हमको सो दूर है। आज अगर बुढ़ापे के मरहले पर बाप कदम को रख देता है, बेटा जवानी के मरहले पर मुंबई या तमाम बाहर कमाने के लिए चला जाता है, अगर बाप किसी चीज का जिक्र कर दे तो बेटा जवाब देने लगता है कि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, मैं कि दे दूं तुम्हें, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। वो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आओ अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ो। पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम मुसलमानों को क्या नहीं दिया है। वही अरब की सरजमीन है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है तो अरब की सरजमीन पर कहीं माओ को मनहूस कहा जा रहा है, कहीं बाप को बाजारों में ले जाकर बेचा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बाप की उम्र में इनकी औलादे हैं, अगर तुम्हारा औलाद तुम्हारे बुढ़ापे में हाथ को पकड़ कर कहीं मार्केट में मजदूरी करने के लिए कहे तो क्या तुम्हें ये गवारा होगा कि जिस बेटे की परवरिश तुमने किया है, जिस बेटे की जवानी के मरहले पर तुमने पहुंचाया है, जिस बेटे को तुमने दुनिया में चलना सिखाया है, वो बेटा अगर तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे हाथ को पकड़े और बाजार में ले जाए, कहे मजदूरी करो उसके बाद खाना मिलेगा, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। आओ हिस्ट्री पढ़ो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रोए जमीन के ऊपर तशरीफ लेकर नहीं आए थे, जमाने का आलम यह था कि जब बाप बुढ़ापे के मरहले पर पहुंच जाता था तो उसका सगा बेटा उसके हाथ को पकड़कर बाजारों में बेचने के लिए ले जाया करता था। हमने हिस्ट्री पढ़ा है कि जो माँ अपने बेटे को 9 माह कोख में रखती थी, वही बेटा जब जवानी के मरहले पर कदम को रखता था, जब उसी के बाप का इंतकाल हो जाता था तो अपने माँ की तरफ मुखातिब होकर कहता था कि वो मेरी माँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं सुबह सवेरे बाजार में अपनी तमाम सामान को फरोख्त करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माँ, तुम बताओ, जिस औलाद की परवरिश के लिए तुम रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझती हो, ना जाने कितनी तकलीफें उठाती हो, और फिर तुम्हारे शोहर के इंतकाल होने के बाद अगर तुम्हारा बेटा कहे कि तुम अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, उस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा। लेकिन आओ कुर्बान हो जाओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस रोए जमीन के ऊपर तशरीफ लाते हैं, पूरे जमाने को दर्श देते हैं, ऐ जमाने वालों, जिन बाप को आज तुम बाजारों में बेचने के लिए ले जा रहे हो, ये बाप ही तुम्हारी कामयाबी की जमानत है। अगर बाप की तुमने कर लिया, अगर बाप की दुआएं तुमने ले ली तो जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो नौजवानों जिन माओ को तुम मनहूस कह रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत को रख दिया है। गोया अल्लाह के रसूल ने जमाने वाले को माँ बाप की अजमत को बताया तो आज जमाना अपने माँ बाप की अजमत को पहचान रहा है। वरना ऐ लोगों, जो आलम जमाने का था कि बेटा जवानी में पहुंचकर बाप को बेचता था, अपनी माँ को मनहूस कहा करता था। लेकिन कुर्बान हो जाओ नबी के दीवानों कि अल्लाह के रसूल ने जमाने को बता दिया, ना ना ना, तुम सजदे लाख कर लो, तुम खैरात लाख लुटा दो, तुम लाख दुनिया में नेकिया कर लो, अगर तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं है तो सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों, आज का आलम यह है कि बेटा अपनी कमाई से भरपूर खर्चा अपने बाप को देना गवारा नहीं करता है। लेकिन कुर्बान हो जाओ नबी की जिंदगी पर, कुर्बान हो जाओ सहाबा की जिंदगी पर। हजरत अबू हुरैरा है, नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, नबी के साथ दीन की तबलीग के लिए जा रहे हैं, नबी के साथ इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि कोई नबी का कलमा पढ़ रहा है तो नबी के पूरे उसके पूरे घराने नबी के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा है, उनके दिल में एक ही बात गूंजती रहती है कि ऐ अबू हुरैरा, तो नबी का दीवाना तो हो गया है, नबी का कलमा पढ़ने वाला तो हो गया है, लेकिन तेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुई है, तेरी माँ मुशरिका है। कल जब कयामत का मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ईमान वालों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और जो बेईमान वाले होंगे, जो नबी के दीवाने नहीं होंगे, नबी के कलमा पढ़ने वाले नहीं होंगे, उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। हजरत अबू हुरैरा दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि मेरी माँ भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हजरत
हजरत अबू हुरैरा उठते हैं, आज के नौजवान जिस घर में रहते हैं उस घर में अपने बाप को अच्छा मकान बनवा के अच्छा रूम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुर्बान हो जाओ सहाबा की जिंदगी पर। हजरत अबू हुरैरा अपनी माँ के पास जाते हैं, वो मेरी प्यारी अम्मी जान जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ, जिस नबी का कलमा अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा उस्मान गनी पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा मौला अली पढ़ते हैं, ऐ मेरी माँ जिस नबी का कलमा सहाबा पढ़ते हैं, ऐ मेरी बात तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, क्योंकि मेरे दिल को ये गवारा नहीं हो रहा है कि मैं नबी के साथ जन्नत में जाऊं और मेरी माँ मुशरिका होके जहन्नम में जाए। कुर्बान हो जाओ हजरत अबू हुरैरा की सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। सहाबी रसूल है, एक वो भी ईमान वाले हैं जो अपने माँ के पास जाके हाथ जोड़ के कहते हैं अम्मी जान कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, नबी के दीवानी हो जाओ, नबी का कलमा पढ़ लो, क्योंकि कल नबी के साथ जन्नत में जाना होगा। मेरे दिल को ये गवारा नहीं हो रहा है कि मैं जन्नत में जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में जाए। आज कैसे नौजवान है जो अपनी वालिदैन की खुशियों को छीन कर अपने आप को कामयाब समझते हैं। हजरत अबू हुरैरा है, माँ के पास जाके इल्तिजा करते हैं, माँ कहती है नाना बेटे मैं अपने बाप दादाओं की मजहब को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं अपने बाप दादाओं की बुतों का पूजा करना नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि अबू हुरैरा समझा रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा मना रहे हैं, अपने माँ को नबी के कलमा पढ़ने की बातें कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा की माँ गुस्से में आती है और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है कि हजरत अबू हुरैरा को तकलीफ होती है। हजरत अबू हुरैरा उठते हैं, किसकी बारगाह में जाते हैं? कुर्बान हो जाओ, मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं। मेरे नबी की निगाहें पड़ी, वो अबू हुरैरा मायूस क्यों हो, वो अबू हुरैरा रोने क्यों लगे हो? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एकाएक लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम के मर मिटने वाले हैं, लेकिन मेरी माँ आज भी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो रही है। मेरे दिल को ये गवारा नहीं हो रहा है कि मेरी माँ जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम सबके नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब तू घर जा, तेरे रसूल तेरी माँ के हक में दुआएं करने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठाया है। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते घर जाते हैं, दौड़ते दौड़ते घर जाते हैं। जैसे घर के अंदर दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि अम्मी जान अभी गुस्ल से फारिग हुई है, आके हजरत अबू हुरैरा के करीब बैठ जाती है। बैठने के बाद कहती है, ऐ मेरा बेटा तू मायूस होके क्यों फिर रहा है? ऐ मेरा बेटा तेरा चेहरा उदास क्यों है? तेरी जिद यही है कि जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है मैं पढ़ लूं, जिस नबी के दीवाना तू है मैं उस नबी पर मन मिटूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हाँ हाँ माँ, मेरे दिल को ये गवारा नहीं हो रहा है कि मैं जन्नत में जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में जाए। ऐ अल्लाह के रसूल के, ऐ मेरी माँ अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ के पास दावत इस्लाम पेश कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा की माँ कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है। वही अबू हुरैरा जो मायूस होकर मक्के की गलियों में घूमते थे, अरब की वादियों में घूमते थे, जब माँ ने कलमा पढ़ा है तो हजरत अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते नबी में की बारगाह में आए हैं और रसूल अकरम की बारगाह में इल्तिजा किया है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज तक तो जमाने में आज तक मेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपने भेजा है, आपकी दुआओं का ये असर है कि मैं घर के अंदर गया, मेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नौजवानों सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको क्या नहीं दिया है? अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको क्या नहीं अता किया है? तारीख पढ़ो। आज का आलम यह है, आज हमारी मस्जिद वीरान है। आज का आलम यह है कि आज शराब के अड्डों पर आबादियां हमारी ज्यादा नजर आने लगी है। और मेरी कौम के लोगों और मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ कि आज मस्जिदों की मीनारों से आवाजें आती है, तुम अपनी औलादों को मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं भेजती हो? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कॉलेज का सुबह 8 बजे का टाइम है तो तुम बच्चे को तैयार करके टिफिन तैयार करके भेज देती हो कि मेरा बेटा तालीम हासिल करेगा।
दुनिया में सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि तालीम के साथ अगर मेरा बेटा रब को राजी करेगा तो कयामत तक चमकेगा। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा अगर दीन के रास्ते पर चलेगा तो जमाना उसके कदमों में होगा। आज मस्जिदें वीरान है, माए खामोश है। आओ सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ो, आओ सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ो। मैदान करबो बला का मंजर है, मैदान करबो बला का मंजर है। हजरत अली अकबर जा रहे हैं, जिंदा नहीं आ रहे हैं। हजरत कासिम जा रहे हैं, जिंदा नहीं आ रहे हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार जा रहे हैं, जिंदा नहीं आ रहे हैं। फिर भी सैयदा ज़ैनब भाई हुसैन की बारगाह में जाती है और जाने के बाद अर्ज करती है, भाई हुसैन इजाजत हो तो मैदान करबला में अपने दोनों बच्चों को भेज दूं, मैदान करबला में अपने लालों को भेज दूं। गोया सैयदा ज़ैनब को पता है कि मेरे बच्चे करबला में जाएंगे, जिंदा नहीं आएंगे। लेकिन आज अगर मेरे बेटे मैदान में उतर गए तो कयामत तक मेरे बेटों के सरों पर जीत का ताज होगा, हमारे बेटे कामयाब होंगे। ओ मेरी माँ, तुम कनीज़ा फातिमा कहलाती हो, तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जन्नत में जाना है, तुम्हें मैदान महशर में सैयदा फातिमा के साथ जाना होगा। अगर सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया, वो मेरी कौम की औरतों, वो मेरे बाप मेरे नाना जान की कलमा पढ़ने वाली औरतों, बताओ कि आजकल जब मैदान करबला में इस्लाम की बका के लिए जरूरत पड़ी थी तो हमने अपने दोनों बच्चों को मैदान करबला में उतार दिया था। लेकिन तुम्हारे बच्चों को अब आखिरी वो लम्हा नहीं था कि मैदान में तलवार लेके उतारा जाए। सिर्फ मस्जिदों को आबाद करने के लिए बातें की जा रही थी। तुमने अपनी औलादों को मस्जिदों से आबाद क्यों, मस्जिदों में भेजकर मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करवाया? तो मेरी माँ बहनों क्या जवाब दोगी? गोया अगर तुम कनीज़ा फातिमा हो तो अपने ज़हनो फिक्र में इस बात को डाल लो, अगर तुम अपनी औलाद को सूरज की तरह चमकाना चाहती हो, अगर तुम अपनी औलाद को अपने बुढ़ापे का लाठी बनाना चाहती हो तो तुम अपने औलाद को बचपने से ही मस्जिदों में भेजना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे बेटे मस्जिदों के दीवाने हो गए तो कसम खुदा की, जिस मैदान में ये उतरेंगे मैदान इनका हो। सुभान अल्लाह, सुभान मैदान में ये अल्लाह, उतरेंगे, ये मैदान इनका होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आलम ये है कि बेटा 15 साल का हो गया, भेजो मुंबई जाता है, 6 महीना साल भर रहता है। अम्मी परेशान है, अब्बा परेशान है, कुछ पैसा वैसा नहीं, बस तनख्वाह ही नहीं मिला है, पैसा ही नहीं मिला है। मिला था कपड़ा खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और आने के टाइम टिकट मारेगा पुष्पक एक्सप्रेस का, यो फोन लेगा और कहीं स्टेशन के करीब रुकेगा, या फटी फटी जैकेट खरीद लेगा और बाल कटवाएगा, कहीं इस तरफ लाल कलर, कहीं पीला कलर, कहीं व्हाइट कलर। और फिर वहां से फैशन में आके लखनऊ स्टेशन पे उतरेगा, एक सेल्फी लेगा और वहीं से स्टेटस लगाना शुरू कर देगा। 1 साल मुंबई में रहा है, अभी जिस्म में 1 किलो से 2 किलो मांस नहीं हुआ है, अभी 250 ग्रामी है। पैर देख लो तो सूखी बीड़ी, हवा तेज चले तो हवा का झोंका बर्दाश्त न कर सके और वहीं से स्टेटस लगा देंगे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अगर कारी आसिफ साहब जोर से एक तमाचा रख दे तो जमीन से नहीं उठ पाएगा, लेकिन स्टेटस लग जाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो मेरी कौम के नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा दबदबा है तो दबदबा है कहाँ? अगर तुम्हारा दबदबा है तो दबदबा दिख क्यों नहीं रहा है? आज शराब के अड्डों पर हमारे नौजवान क्यों नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हारा दबदबा है तो आज हमारी बेटियों को काट कर फ्रिजों में क्यों सजाया जा रहा है? अगर दबदबा है तो हमारी मस्जिदें वीरान क्यों है? अगर दबदबा है तो शराब के अड्डों को आबाद क्यों किया जा रहा है? अगर दबदबा है तो गांव में नचनियों को क्यों लाया जा रहा है? अगर दबदबा है तो अय्याशियों की महफिलों को आबाद क्यों किया जा रहा है? अगर दबदबा ही देखना है तो आओ अबू बकर की जिंदगी पढ़ो, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी पढ़ो, हजरत मौला अली की जिंदगी पढ़ो, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी पढ़ो। हजरत उमर फारूक आजम का दबदबा इस तरह था कि इंसान तो इंसान है, अगर शैतान आता था तो वो भी रास्ता बदल देता था और कहता था रास्ता चेंज कर दो, मुसलमानों के खलीफा उमर फारूक आजम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, दबदबा ऐसा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया जाता था। दबदबा ऐसा था कि जहां मैदान में उतर जाया जाता था, मैदान हमारा हो जाता था।
आओ तारीख पढ़ो। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी। हजरत खालिद बिन वलीद जब मुल्क रूम पर हमलावर होते हैं, मुल्क रूम के सारे ताकतवर, सारे पादरी, सारे अपने देवी देवताओं के मानने वाले बाहर आ जाते हैं। नाना खालिद बिन वलीद, हम तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम तुमसे खूनो रेजियां नहीं कर पाएंगे। ऐ खालिद बिन वलीद, हम तलवारें नहीं चला पाएंगे, बस 2-4 शर्तें हैं, आप कबूल कर ले। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, बताओ, कहा सुबह सवेरे सदर गेट को खोल दिया जाएगा, आप लश्कर इस्लाम को लेकर बाजार को पार कर देना, पूरा मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। दबदबा देखो, दरवाजा खोल देंगे, आप लश्कर इस्लाम को लेकर सिर्फ पार कर देना, ये पूरा मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर पे जाते हैं, सुबह की आज़ान होती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। ऐ लोगो, आओ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, आओ आओ, सोने से बेहतर नमाज है। हजरत खालिद बिन वलीद नींद से बेदार होते हैं, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम नींद से बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद मस्जिद में जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की इक्तिदा में सारे आशिकाने रसूल की जमात नमाज अदा करते हैं। करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार होते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम घोड़े पे सवार होते हैं। अब मुल्क रूम के सदर गेट को खोला जा रहा है, हजरत खालिद बिन वलीद है, तमाम आशिकों की जमात है। जब बाजार के बीचों बीच सेंटर पे पहुंचते हैं, एक तमहीदी निगाह डालते हैं, क्या देखते हैं? पूरे बाजार को फाहिशा औरतों से सजा दिया है गया है, बेपर्दा औरतों से सजा दिया गया है। जिस तरफ निगाहें डाली जाए, बेपर्दा औरतें नजर आ रही है, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें नजर आ रही है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को रोका और रोकने के बाद कहा, वो मुजाहिदीन इस्लाम, सुनो सुनाओ, आज इस बाजार को पार करना है और इस तरह करना है जिस तरह पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, जिस तरह रसूल कायनात ने बताया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तुम बाजारों से निकला करो तो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो। इनका मंसूबा समझ में आ गया है। इनका मंसूबा ये है कि जब खालिद बिन वलीद अपने मुजाहिदों को लेकर बाजार से निकलेंगे, जब मुजाहिदों की नजर बेपर्दा औरतों के ऊपर पड़ेगी, फाहिशा औरतों के ऊपर पड़ेगी, इनके कदमों में जलजला पैदा हो जाएगा, ये अपने घोड़ों से उतरेंगे, बदकारियों में मुब्तला हो जाएंगे, खालिद बिन वलीद तने तनहा हो जाएंगे। हम उन पर हमला करके हम फतेह हासिल कर लेंगे, उन्हें मुल्क से बाहर कर देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ना ना, आज किसी जमींदार की नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम की बात करनी है। तुम अपने नबी के फरमान के मुताबिक अपनी निगाहों को नीची करके बाजार को पार करो। तारीख शाहिद है कि जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे, सबों ने अपनी निगाहों को झुकाया और झुकाने के बाद बाजार को पार किया। जैसे बाजार के बाहर हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े को रोकते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम हाजिर होते हैं, फिर तमाम मुल्क रूम के ताकतवर आ जाते हैं, हुकूमत संभालने वाले भी आ रहे हैं, बादशाह चलाने वाले भी आ रहे हैं, तमाम पादरी आ गए। ऐ खालिद बिन वलीद, ऐ खालिद बिन वलीद, अब मुझे जंगों और मुझे कत्लो गारत करने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये आलम है, आपके चाहने वालों का ये आलम है, नबी के कलमा पढ़ने वालों का ये आलम है कि फाहिशा औरतें खड़ी हो और निगाहें नीची करके चले जाए, तो फिर पैगंबर इस्लाम का आलम क्या होगा, मुस्तफा का आलम क्या होगा, ताजदार मदीना का आलम क्या होगा। ऐ खालिद बिन वलीद, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए और ये मुल्क आपके हवाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो मुजाहिद थे, एक वो मुजाहिद, एक वो मुजाहिद थे यारों कि खालिद बिन वलीद मैदान में उतरते हैं, मैदान उनका, मुल्क उनका। आज क्या हालत, हमारी मस्जिदें वीरान, हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर घूम रहा है, हमारा नौजवान नाच गानों की महफिलों में जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, फिक्र करने की बात है। अभी मुफ्ती साहब किबला ने क्या कहा था, हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में इंतज़ार किया था, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर रब की बारगाह से कुछ मिले तो एक इजाजत तलब करवा लेना कि जब पुल सिरात का पुल हो ना तो उसमें मेरा पर हो, आपकी उम्मत आसानी से गुजरे, आपकी उम्मत आसानी से गुजरे। और तारीखी जुमला सुनो, जब अल्लाह के रसूल रब के रूबरू बैठे, बातें होने लगी, रब ने पूछा, महबूब क्या चाहिए?
मौरखीन लिखते हैं हजरत प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि कई कई मर्तबा मेरे नबी ने यही कहा, ऐ खुदा बस मेरी उम्मत, आज तुम शादियों की महफिलों पर नबी की शरीयत को भूल जाते हो, छठी के मौके पर नबी की महफिल को भूल जाते हो, तमाम अकीके के मौके पर नबी की शरीयत को भूल जाते हो, कुर्बान हो जाओ। आज अगर हज करने कोई जाता है तो उसके दिल के खुशी का आलम यह होता है कि वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देता है, पूरे इलाके के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन आओ नबी मेराज को गए, मेराज को गए हैं, रब ने बुलाया महबूब आओ रूबरू बैठना है, तुमसे बातें करनी है, महबूब है अल्लाह है, महबूब है अल्लाह है, बातें होनी है। फिर भी मेरा रसूल हमें नहीं भूल रहा है, मेरा हबीब रब की बारगाह में पहुंचकर हम उम्मत को नहीं भूल रहा है। और हम कैसे उम्मत है, हम कैसे नबी की कलमा पढ़ने वाले हैं कि शादियां हो तब भी नबी को भूले हैं, अकीका हो तब भी नबी को भूले हैं। अगर कारी आसिफ साहब, अमीर हसन साहब किबला चले जाए, कहते अरे ये काम ना करो, अरे मौलाना खामोश रहना, कहीं बार बार ये मौका आता है, कहीं बार बार ये मौका आता है। वो लोगो तुम कह रहे हो क्या बार बार मौका आता है? मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने सवाने पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को गए ना, तो जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने सिर्फ हमारा जिक्र किया, और जब मेराज से तशरीफ लेकर आए ना तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो आयशा मैंने जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी है, ऐ आयशा जाओ मदीने की औरतों से कह दो कि पर्दे में रहा। मेरे नबी ने कहा ऐ आयशा जाके मदीने की औरतों से कह दो पर्दे में रहा करे, पर्दे में रहा करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा, मैंने सबसे ज्यादा औरतों की तादाद जहन्नम में पाया है। हजरत आयशा उठी, अहले अरब की औरतें हैं, हजरत आयशा खिताब फरमा रही है, कहा वो अहले अरब की औरतों तुम पर्दे में रह के अपनी जिंदगी गुजारा करो। लिखने वाले लिखते हैं, आओ हिस्ट्री पढ़ो, हजरत आयशा ने जब कहा था तो अहले अरब का आलम यह था कि मदीने की गलियों में पेमन लगा लगा की औरतें निकल रही थी, जिनके पास चादरें नहीं थी, वो चादरों को जोड़ जोड़ कर पर्दे का इस तरह एहतमाम किया था कि पूरे अहले अरब में पर्दे का आलम यह हो गया था कि जिस गली से औरतें निकलती थी लोगों को ये पता चल जाता था कि ये इस्लाम की शहजादियां इस्लाम की मानने वाली निकल रही है। और आज का आलम क्या, बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, टाइम भी आप लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने, आप गौर करते चलिए, आज का आलम क्या है। औरतों को अल्लाह ने कहां पैदा फरमाया पता है? औरतों को अल्लाह ने कहां पैदा फरमाया? जन्नत में। अल्लाह हजरत आदम को जन्नत में भेजा, हजरत आदम को बेचैनी हुई, अल्लाह ने हजरत आदम की बाई पिछली से हजरत हव्वा को पैदा, गोया अल्लाह ने जन्नत में पैदा फरमा के बता दिया कि वो औरतों तुम्हें बेपर्दा रहने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया। कितनी अजमतें बयां किया जाए, कितना मर्तबा बयां किया जाए, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे अकाबिरीन ने फरमाया कि बाहिजाब माँ की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है। बाहिजाब माँ की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। औलाद लाख बुरे हो जाए फिर भी माँ को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, दुआ ही देना चाहिए, क्योंकि माँ की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है और बद्दुआएं भी कबूल होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की गलती से माँ बद्दुआ दे दे तो बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की दुआएं बहुत कबूल होती है। आओ हिस्ट्री पढ़ो, पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मां अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी वही अरब की ज़मीन है, मस्जिद नबवी है, मुस्तफा का घर है, हजरत आयशा है, नबी आखिर ज़मां का चौखट है। पूरे अरब में यही मशहूर है कि कोई कहीं भी जाए कुछ ना पाए, नबी की चौखट पे चला जाए झोली भर दिया जाता है। एक औरत
अरब की गलियों में, मदीने की गलियों में फिर रही है अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों को लिए कि मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, कोई मेरे बच्चों को खाना खिला दे, कोई मेरे बच्चों को पानी पिला दे। बताने वालों ने बताया, ऐ औरत, मदीने की गलियों में इधर उधर ना फिर, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे चली जा, वहां से किसी को मायूस नहीं किया जाता है। वो औरत दौड़ती दौड़ती मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे जाती है, नबी की बारगाह में अरीजा पेश करती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती है, दरवाजे को खोलती है, क्या देखती है? एक साइल औरत है, अपने दो बच्चों को लिए पुकार रही है। हजरत आयशा पूछती है, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? उस औरत ने कहा, हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, मदीने की गलियों में किसी ने खाने का सामान नहीं दिया है। हजरत आयशा फरमाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, इस चौखट से किसी को मायूस नहीं किया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर आती है, क्या देखती है कि 3 खजूर रखा हुआ है। वो 3 खजूर को लेती है, लेने के बाद उस औरत के हाथ में ले जाकर रख देती है। वो औरत खजूर को लेती है, अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक दे देती है। दोनों बच्चे कई दिनों से भूखे थे, एक एक खजूर खा लेते हैं। फिर जब दोनों बच्चे खजूर को खा लेते हैं, फिर माँ भी कई दिनों से भूखी थी, उस खजूर को तोड़कर अपने मुंह में रखने वाली क्या थी कि दोनों बच्चों की निगाहें माँ के चेहरे पर पड़ी। माँ समझ गई कि मेरे बच्चों की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। माँ के ममते को ये जमाना क्या समझे। अगर बेटा आज भी कह दे ना कि माँ मेरी तबीयत खराब है, तो जब तक बेटा ये ना कह दे कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है, माँ घर के अंदर चक्कर लगा लगा के पूछती है, बेटा तेरी तबीयत कैसी है, बेटा तेरा बुखार उतरा कि नहीं उतरा, बेटा तू अच्छे से खाना खाया है कि नहीं। जब तक बेटा ये ना कह दे मेरी माँ मेरी तबीयत ठीक हो गई है, माँ दौड़ दौड़ कर पूछती रहती है। ये जमाना क्या समझे माँ क्या चीज होती है। आप कुर्बान हो जाओ। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक खजूर खा लिया है, माँ का चेहरा देख रहे हैं। माँ भी कई दिनों से भूखी है, फिर भी बच्चों के चेहरे की तरफ देखती है। देखने के बाद खजूर को अपने मुंह में ना रखने के बजाय हाथ में लेती है, 2 टुकड़े कर देती है। करने के बाद एक छोटे बच्चे को दे देती है। माँ भी कई दिनों से भूखी है, लेकिन अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए एक टुकड़ा लेती है, अपने छोटे बच्चों को दे देती है, एक बड़े बच्चे को दे देती है। मेरे मुस्तफा की निगाहें पड़ रही है, मेरे नबी देख रहे हैं। मेरे नबी ने पुकार कर कहा, वो आयशा, आज इस माँ की मोहब्बत ने मेरी माँ की मोहब्बत को याद दिला दिया। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज में होता, मेरी माँ कहती या मोहम्मद मेरे करीब आओ, तो मैं नमाज को छोड़कर माँ की बारगाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि आज मेरी माँ होती और कहती बेटा मोहम्मद कहाँ हो, अगर मैं नमाज में होता तो माँ के पास दौड़ता चला आता। और आज अगर रात के 8 बजे तुम जा रहे हो, माँ पूछ ले कहाँ जा रहे हो, और अम्मा सर ना करो बैठे रहो, मैं होता है ना। माँ को भी पता है बेटा कहाँ जा रहा है, माँ को भी पता है बेटा कहाँ गुल खिलाने जा रहा है, किन दोस्तों के साथ नाच देखने जा रहा है, किन दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा है। फिर भी माँ खामोश बैठी रहती है। वो मेरी कौम के लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल मैदान महशर में अगर जहन्नम का ताज तुम्हारे सर पे रख दिया गया और फिर तुम्हें जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाया जाएगा, तो क्या तुम्हारे ये दोस्त काम आएंगे, क्या तुम्हारे अज़्ज़ा क़रीब काम आएंगे, क्या तुम्हारे शराब पीने वाले और नाच गाने करने कराने वाले काम आएंगे? ना ना ना, ये दुनिया के कोई रिश्ते काम आने वाले नहीं है। अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो पैगंबर इस्लाम का काम आएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई रिश्ता अगर काम आएगा पैगंबर इस्लाम का काम आएगा, बाकी कोई रिश्ते काम आने वाले नहीं है। आज कहा जाता है कि आज हमने दौलतें बना दिया है, बिल्डिंगें बनवा दी है, गाड़ियां खरीद दिया है, बैंक बैलेंस बनवा दिया है, मेरे मरने के बाद हमारी औलादें हमारे लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, सारे लोग बैठे हुए हो, बताओ इसमें आप अपने औलादों से या अपने गाँव की मोहल्ले के बच्चों से पूछ लो कि अपने दादा की कब्र बता दे जिनकी जायदाद पर तुम कमा रहे हो और तुम्हारी औलादें
खा कमा रहे हैं। बताओ कोई अपने दादा परदादा की कब्रें बता दे, वो कब्र बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इन औलादों से क्या उम्मीद रखी जाए जो अपने बाप दादाओं की कब्र को भुला चुके हो। तो कल हमारे मरने के बाद ही हमारी औलादें हमारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने आएंगे, या हर साल फूल चढ़ाने आएंगे, या फिर घर में बैठकर कुरान की तिलावत करेंगे। आज अगर बाप या दादा या कोई रिश्तेदार खत्म हो जाता है तो कबीर चलाने का वक्त होता है, 5 मिनट बैठकर पारा पढ़ने का वक्त। जिन औलादों के अंदर नहीं है, जो औलादों नहीं वक्त दे सकते हैं, उनसे क्या फिक्र किया जाए, क्या उम्मीद की जाए कि वो औलादें हमारे मरने के बाद वो हमारे कब्र पर कुरान पढ़ने आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात बड़ी कड़वी है यारो, लेकिन थोड़ा पीने की कोशिश करो। होता है ना, बाप खत्म हो जाता है तो मौलाना साहब 3000 ले लेना, 40 दिन पढ़ देना। मेरी उंगली पे चोट लगे तो मुझे जितना दर्द महसूस होगा उतना दर्द किसी को महसूस होगा। लाख आंसू गिरा दो तुम, लेकिन जो चोट मुझे लगी होगी वो दर्द जो मुझे है वो दर्द तुम्हारे दिल में कभी नहीं पैदा हो सकती है। वो दर्द मुझे होगा जब मेरा बाप दुनिया से जाएगा, तो जो दर्द मुझे होगा वो तुम्हें नहीं होगा। जब तुम्हारा बाप दुनिया से जाएगा वो दर्द तुम्हें होगा, वो किसी और को नहीं होगा। लेकिन रब वो है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। रब वो है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। वो रब है कि एक नौजवान इस दुनिया से गया, उसके कब्र में आजाब हो रहा था। उसकी माँ बड़ी नेक थी, माँ ने बेटे की उंगली पकड़ा और पकड़ने के बाद मदरसा लेके गई। ले जाने के बाद कहा, मौलाना साहब मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखा दो। जैसे बेटे को कहा गया, बेटा पढ़ तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बेटे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैब से आवाज आई, वो मेरे फरिश्तों जाओ उस जनाब के कब्र से आजाब को हटा लो, क्योंकि जिसका बेटा जमीन पर रह के मुझे रहमान और रहीम पुकारे, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि उसकी कब्र पे मैं आजाब डालूं। सुभान अल्लाह वाह वाह। तुम्हारा बेटा दिल की गहराइयों से कहेगा, ऐ खुदा मेरा तेरा कलाम पढ़ रहा हूँ, मेरे कलाम का सवाब, अपने कलाम का सवाब मेरे वालिद को पहुंचा दे, मेरी वालिद की बख्शिश कर दे। मिंबर रसूल से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी औलादों ने ये फिक्र दिल में रखी, तो निदामत के आंसू गिरा के तुम्हारे हक में दुआएं कर दी, तो वो दुआ पहले कबूल होगी और बाकियों की दुआ बाद में कबूल होगी। बाकियों की दुआ बाद में कबूल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने सुना है अपने असलाफ से, मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे। बेटा जब कम उम्र का होता था तो उसे नबी की नात सुनाया करते थे। मैंने सुना है कि जब बेटे 4 साल 6 महीने के हुआ करते थे तो फिर बाप बेटे को ले जाकर बिस्मिल्लाह खानी कराया करता था। बस आखिरी बात सुनो, सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है? सारे लोग जानते हैं। हम उनके दयार में रहते हैं, उनके इलाके में रहते हैं, उनका सदका खाते हैं। सरकारे गाजी की उम्र शरीफ जब 4 साल 6 महीना 9 दिन की हुई तो हजरत सैयदना सालार शाहू ने बेटे की उंगली को पकड़ा, कहा बेटा बेटा बताओ, हुकूमतें जिनके घर में हो, सल्तनत जिनके घर में हो, बादशाह जिनके घर में हो, वो बेटे की उंगली पकड़कर मदरसे में ले जा रहे हैं। हजरत सैयदना इब्राहिम 12 हजारी अलैहिर्रहमा की बारगाह में, हुजूर ये मेरा बेटा है, मैं उंगली पकड़ के लाया हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ, अब इसे चलना आपको सिखाना है। कामयाबी कहाँ से मिलती है इसे आपको बताना है। दुनिया में तरक्की कैसे मिलती है इसे आपको बताना है। दुनिया में किस तरह फतेह हासिल किया जाता है आपको सिखाना है। बताओ। सैयदना इब्राहिम 12 हजारी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं। कराने के बाद वही सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 साल की उम्र में अपने वक्त के मुफक्किर भी बने हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस भी बने हैं, अपने वक्त के आलिमे दीन भी बने हैं और अपने वक्त के मैदान के सिपे सालार भी बने हैं। 9 साल की उम्र में सरकारे गाजी ने तमाम उलूम हासिल कर लिया। गोया पता ये चलता है कि जब बच्चों की उंगलियां सही हाथों में चली जाती है तो बेटे कम उम्र में दुनिया में कामयाबी हासिल कर।
اور 18 سال کی عمر میں اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑا ہے کہ بہرائچ کی گرد گرد چلے جاؤ تو دیکھو ہر طرف سرکار غازی کا نعرہ لگانے والے موجود ہیں۔ آج 9 سال کا بیٹا سلام کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے، بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے، بھائیوں سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے۔ وہ کیول پور کے مسلمان ہو، بس تقریر ختم کر رہا ہوں، اس جملے کو سنو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، تو اب دنیا کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈالو، لیکن اس کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور ایک ہاتھ میں قلم دے دو۔ قسم خدا کی جب زمانہ اسے ظلمت میں ڈالے گا تو وہ قرآن اٹھا کے ظلمت کو مٹا کے سیدھا راستہ تلاش لے گا، اور جب دنیا اپنی حکومت سے اسے مٹانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنے قلم کی طاقت سے ان کے دلوں میں اپنا پرچم لہرا کے ان کے دلوں میں ایسا موہر لگائے گا کہ زمانہ دیکھتا رہے گا یہ کسی دنیا دار کا بیٹا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام، نبی کا دیوانہ آیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بچیوں کا عالم یہ ہے کہ بس دنیا کی باتیں کہا جاتا ہے نا، اگر کوئی بات بولی ہو نا تو سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے پہلے اگر گاؤں کی اس بات کو اس گاؤں میں پہنچانا ہے اس کونے میں، تو اس گاؤں کی کسی عورت کو خبر کر دو، اس کونے میں پہنچ جائے گا۔ یہ بیچ کے مرد والے نہیں جان پائیں گے، مرد بھائی کیا ہوا گاؤں کے اس کونے میں۔ اور میری ماں تمہیں اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ بحجاب قبول فرماتا ہے، اس لیے آپ اپنی اولادوں کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال کر رکھو۔ اور کٹلیا چوراہا پہ راحت ہاسپٹل کے پاس ایک مدرسہ ہے جس کو میں چلاتا ہوں، جامعہ ام الخیر فاطمہ، جس میں 8 فروری کو جلسہ ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام۔